Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 27। यह स्वकारात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिगेहात् प्रवजेत्स नरोत्तमा। He is certainly a first class man who awakens and understands either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within his heart. तो अपने श्री प्रभुपाद जी ने हम लोग को इसका जो अर्थ बताया है वो इस तरह से है कि उन्होंने वो एक आदमी को एक अच्छा और फर्स्ट क्लास माइंड कहा है जो जिसको पता है कि हम लोग अगर किसी और पे मतलब जो अपने विवेक को समझ लेता है और उसको ये भौतिक जगती की अशाश्वतम जो है उसके बारे में पता चलता है और इस भौतिक जगत में हम लोग कितने परेशानियों से गुजरते हैं उसकी उसको जो पता चलता है और वो खुद अपना घर छोड़ के पूरी तरह वो कृष्ण पे पूरी तरह से निर्भर होता है विद इन आवर्स। तो ऐसे ऐसे जो भगवान अपने हृदय में है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ऐसे आदमी को प्रभुपाद जी ने फर्स्ट क्लास मैन कहा है। तो हम लोग प्रभुपाद जी का परपट लेते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। वन में लिव इन there are three class there are three classes of transcendentalists, namely the dhira, or the one who is not disturbed in being away from family association. One is the renounced order of life, a sannyasi, by frustrated sentiment. And third, a sincere devotee of the Lord who awakens God consciousness by hearing and chanting and leaves home depending completely on the personality of Godhead who resides in his heart. The idea is that the renounced order of life, after a frustrated life of sentiment in the material world, may be the stepping stone on the path of self realization. But real perfection on the path of liberation is attained when one is practiced to depend fully in the Supreme Personality of Godhead, who lives in everyone's heart as Paramatma. One may live in the darkest jungle alone out of home, but a steadfast devotee knows very well that he is not alone. The Supreme Personality of Godhead is with him, and he can protect his sincere devotee in any awkward circumstance. One should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality, form, pastimes, enterage, etc., in association with pure devotee. And this practice will help one awaken God consciousness in proportion to one's sincerity of purpose. One who desires material benefit by such devotional activities can never depend on the Supreme Personality of Godhead, although he sits in everyone's heart, nor does the activities can
nor does the Lord give any direction to persons who worship Him for material gain. Such materialistic devotees may be blessed by the Lord with material benefits, but they cannot reach the stage of the first class human being as above mentioned. There are many examples of such sincere devotees in the history of the world, especially in India, and they are our guides on the path of self-realization. Mahatma Vidura is one such great devotee of the Lord, and we should all try to follow in his lotus footsteps for self-realization. जय श्री प्रभुपाद. तो प्रभुपाद जी जो हम लोग को बता रहे थे, उसके उसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि वन शुड लीव in the darkest jungle alone out of home, but a steadfast devotee knows not, that he is not alone. तो यहाँ पे जो एक सिंसियर जो डिवोटी है वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होता है. उसने अपने आप को भगवान पे पूरी तरह से सौंप दिया होता है. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद परमात्मा जो सबके साथ होते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं. एक आत्मज्ञानी भक्त है, वो परमात्मा से बात भी कर सकते हैं. वो परमात्मा को अपना एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, मतलब अपना जो रिलेशनशिप जो है वो भगवान को मानते हैं और उसी तरह से वो परमात्मा से बात करते हैं. परमात्मा अनुमंता है, लेकिन वो भक्त के लिए भगवान का प्यार, मतलब जैसा भगवान अपने लिए अपने पे प्यार करता है तो भक्त पे भगवान का थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार रहता है. तो वो जो अनुमंता बाकी के लिए तो जो अनुमंता है अपने लिए भी अनुमंता है, लेकिन वो अपने को हर गलत चीज हर सही चीज को अपने को एक अंदर से इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. और फिर भक्त जो है वो उनके हिसाब से भगवान का भगवान अपने से क्या कहना चाहते हैं, उनके जो सिग्नल से सॉफ्ट सिग्नल से उनको समझ लेते हैं और उसी हिसाब से वो करते हैं. गलत चीज करने के पहले उनको कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन भगवान देता है, सिग्नल्स पास करते रहते हैं और वो सिग्नल्स को बराबर समझ के जो प्योर डिवोटी है वो सही रास्ते पे ही चलते रहता है, वो गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है. तो इसके लिए श्री प्रभु जी ने हम लोग को कहा है कि हमें उसके लिए कंटिन्यूअस भगवान की जो भक्ति में सेवा है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. हम लोग को उनका चैंटिंग जो अपने को तो बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने हम लोग को, मतलब जो गौर महाप्रभु जी ने हम लोग को गौरवाणी जो हम लोग बोलते हैं, गौरवाणी प्रचारिणी जो हम लोग हर बार प्रभुपाद जी जो आरती कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है हम लोग को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसका जो वाणी का जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है, हम लोग को उन्होंने बहुत अच्छा महामंत्र दिया है, वो हम लोग को कंटिन्यूअस घर में बाहर कहीं पे भी हम लोग को. एक मिनट है प्रभु जी. ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था उसके लिए मैं दरवाजा बंद किया. हरे कृष्ण. तो हम लोग को प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को दिया है वो हम चैंटिंग जो है हम लोग को श्रवण कीर्तन ये जो है हम लोग को कंटिन्यूअस करना है. घर में, घर के बाहर, जहाँ पे भी हम लोग करते रहते हैं, जहाँ पे भी हम लोग है, जो भी चीज हम लोग करेंगे हम लोग को भगवान को ध्यान में रखना है. भगवान जो अपने साथ हर बार रहते हैं हम लोग को उसको याद रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ रह के हम पे उनका बहुत बहुत प्यार रहता है हम लोग से. हम लोग हर बार बोलते हैं कि हम लोग गए जन्म के कर्म के हिसाब से हम लोग इस जन्म पे दुख और सुख भुगते हैं, लेकिन जो भक्त रहता है वो ये हर बार जानता है कि हमारा जो दुख यहाँ पे है वो भगवान ने इतना कम किया है कि हम लोग मतलब वो जो प्यार है वो हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग को जितना हमारी जितनी मतलब जो कर्म हम लोग ने किया है गत जन्म के उसके हिसाब से हम लोग के शायद दुख बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन भगवान ने अपने असीम प्यार के वजह से वो दुख कम किया है. और जो हम लोग जो इल्यूजरी क्यों ना हो, लेकिन जो सुख हम लोग यहाँ पे जो भोगते हैं, जो भले वो सुख इल्यूजरी हो फिर भी वो सुख करके हम लोग जो मानते हैं वो सुख भी भगवान ने अपने प्यार से, असीम प्यार से बहुत ज्यादा बढ़ाया है. नहीं तो अगर हम लोग
भौतिक लोगों के हिसाब से, मतलब जो कर्मी लोग हैं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, उनको तो रिएक्शंस के, कर्म के रिएक्शन से उन लोग को जो दुख सुख भोगने चाहिए, उसके उसके कंपैरिजन में भगवान ने हमारे सुख काफी ज्यादा तक बढ़ा दिए है। और ये जो भक्त है, ये जो शुद्ध भक्त है, ये सब कुछ जानता है, और उसका फिर उसके लिए व्यवहार जो भी रहता है वो भगवान की चेतना खुद में बढ़ाने का उनका व्यवहार होता है। प्रभुपद जी ने यहाँ पे ऐड किया है, देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपद जी ने यहाँ पे ऐड, इन प्रपोर्शन टू वन सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस, मतलब भक्त हो या कोई कर्मी हो या कोई भी बंदा हो, उसका भगवान के प्रति उसकी क्या श्रद्धा है, और वो श्रद्धे के पीछे उसका क्या हेतु है, मतलब वो अहेतुक है या उसके पीछे कोई हेतु है, उस के हिसाब से हम लोग को जो है वो भगवान की हम लोग पे प्यार आता है, भगवान हमसे उतना प्यार करता है। इन प्रपोर्शन टू वंस सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को वो देखना चाहिए कि जैसे हम लोग को बताया गया है, हर शास्त्र में बताया गया है, प्रभुपाद जी भागवतम में हर जगह पे बताते हैं कि हम लोग को भगवान से जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग को किसी भी तरीके से कोई भी हेतु नहीं रख सकते, हम लोग को कोई भी किसी भी तरीके से भौतिक हेतु की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि हम भगवान के नित्य नित्य दास है, भगवान की सेवा करना ही मेरा धर्म है, और वो हम लोग कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, पूरी प्यार से, पूरा प्यार से कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। और मतलब वो प्यार उभर के आना चाहिए कि जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो मन में कहीं तो आंखों में से आंसू आने चाहिए, कि हम लोग को याद आते रहना चाहिए कि भगवान हम पे कितना प्यार करता है, और वो आंसू अपने एक्चुअली आना चाहिए, और अपने कर्मों में भी वो दिखना चाहिए। कि हाथ जोड़ते समय जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो वो सिर्फ जोड़ने के लिए हाथ नहीं जुड़ना चाहिए, वो भगवान के विग्रह के सामने भगवान को जब देखते हैं तो उनका जो चेहरा है, वो जो प्यार से अपने अपने तरफ देखते हैं, उसकी हम लोग को अच्छी तरह से मतलब अपने मन में वो प्यार जगना चाहिए। तो एक जस्ट एक खुद के बारे में एक दो चीज बता रहा हूँ कि मैं जब भी अपने आप शाम के टाइम पे जब मैं भगवान को, या रात के टाइम पे दिन का जब एंड होता है, तब मैं जब भगवान को ये करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तब मैं पहले ये सोचता हूँ कि आज दिन भर में मैंने क्या भौतिक काम किया है। तो वो भौतिक काम जो मैंने किया है वो मेरा वेस्टेज है। मतलब कोई अगर टीवी का कोई प्रोग्राम देखा है, कोई कुछ भौतिक गाना सुना है, या फिर कुछ लोगों से कुछ बात की है, दोस्तों से प्रजल्प किया है, तो फिर वो लगता है कि ये मेरा पूरा वेस्टेज है। और ये वेस्टेज जो था वो बिना वजह से मैंने भगवान से अपना मन निकाल के वो वेस्टेज में डाल दिया था, जो बहुत गलत चीज है। तो ये चीज मतलब दिन ब दिन हम लोग को ये करते रहना चाहिए कि, मतलब ये मैं खुद को बोल रहा हूँ कि दिन ब दिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये जो व्यर्थ टाइम जो मैं गवा रहा हूँ वो मिनिमल होते रहना चाहिए। तो मैं अपने आप से हर बार ये बोलता हूँ कि ये इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए, कोई भी डिवोटी हो जो भी है, कि मतलब उसने एक इक्वेशन बनाना चाहिए कि माय लाइफ माइनस लव फॉर कृष्णा, इफ इट इज इक्वल टू 0 तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो 0 नहीं है, और माय लाइफ माइनस लव फॉर कृष्णा इज एनीथिंग मोर देन 0, तो हम लोग सच रहे समझना चाहिए कि हम लोग किसी चीजों में आकर्षित है, कोई भौतिक चीजों में हम लोग आकर्षित है, जिसके वजह से हमारा पूरी तरह से हम लोग ने अपना ध्यान कृष्ण पे नहीं डाला है। तो प्रभुपाद जी ये चीज वही बोल रहा है कि वन हु डिजायर्स मटेरियल बेनिफिट बाय सच डिवोशनल सर्विस कैन नेवर डिपेंड ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम लोग को कोई भी भौतिक चीजों की जरा भी आसक्ति रखनी, अगर हम लोग रखेंगे और उस आसक्ति से हम लोग भगवान से प्यार करेंगे, तो फिर वो हम लोग के लिए मतलब वो अच्छा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी और भी बोलते हैं कि ऑल्दो he sits in everyone's heart, nor does the Lord give any direction to the person who worships for material benefit। मतलब जैसे हम लोग ने अभी ऊपर बताया कि जो कर्मी है, जो भौतिकवादी है, जो भौतिक चीजों के पीछे लग के भगवान के विग्रह बनाते, भगवान के मंदिर बनाते, भगवान के मंदिर में दर्शन करते, भगवान का नाम भी लेते हैं, तो उनके पीछे एक भौतिक हेतु रहता है। फिर उनके लिए भगवान जो है उनको उनको डायरेक्शन नहीं देते, भले वो उनको उनके जो चीज मांगी है वो चीज उनको देंगे भी,
वो दे भी देंगे, लेकिन वो जो भक्त मतलब कहलाने के लिए भक्त नहीं, क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगता है, लेकिन फिर वो जो कर्मी व्यक्ति है वो उस स्तर पे जा नहीं पाएंगे जहां पे अपने को प्रभुपद जी लाने का सोच रहे हैं कि भगवान की अहेतु की भक्ति करके भगवान का भक्त बनना है। तो यहाँ पे प्रभुपद जी ने और भी बोला है कि हम लोग को ऐसे सिंसियर डिवोटीज को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस दुनिया के इतिहास में बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये अपने को बताया। तो हम लोग एक पहले भी लेंगे नारद जी, जिन्होंने अपने भक्ति सूत्र में कहा है कि पर्सन एंगेज्ड इन सच प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब ऐसी डिवोशनल सर्विस उन्होंने करनी चाहिए कि जो मतलब उन्होंने कहा है कि जब तक एक भक्त अपने भौतिक शरीर में उन्होंने जो ये कहा है कि एक पर्सन एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस नाइदर डिजर्व्स एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है। तो वो जो भक्तिमय कृति जो होती है भक्त की, वो कभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता नहीं है कुछ भी कार्य, ना वो किसी चीज के खोने से गम करता है, ना वो किसी लोगों से हेट करता है, ना किसी अपने साथ जो हुए बुरे व्यवहार को वो याद रख के उन लोगों से वो घृणा करता है ना। और अगर कुछ खुशी मिल गई, कुछ आनंद हो गया, तो वो उस आनंद पे बहुत ज्यादा खुशी मनाता भी नहीं है। तो वो जो है वो सिर्फ भगवान की जब भक्ति रहती है उसमें वो पूरा तल्लीन होता है, और वहां पे वो बहुत एंथुसियास्टिक रहता है। वो भौतिक कोई भी कार्य में उनको इतनी आसक्ति रहती नहीं है। वो कार्य करना है, मतलब हम लोग अभी इस दुनिया में आ गए हैं तो हम लोग को भौतिक कार्य तो करने हैं, हमारे जो भी नित्य कर्म है, और भले अनित्य कर्म है, मतलब अभी किसी शादी में जा रहे हैं, हम लोग को तो जाना है, अगर वो किसी की रिलेटिव की शादी है तो हम लोग उसको मिस नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे हम लोग जाएंगे तो इतना मतलब वो बोलते हैं कि जैसे नारद जी पता ना कि he never becomes very enthusiastic in material activity। तो मतलब ये भौतिक कार्य है वो हम लोग को करना है, उस हिसाब से हम लोग करना है, लेकिन वो इतना वहां पे अटैचमेंट, इतना इंथुजियाज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वही अगर चैंटिंग हो रहा है, कहीं भगवान की भक्ति हो रही है, कहीं भगवान का संकीर्तन हो रहा है, तब फिर वहां पे वो जो भक्त है, प्योर डिवोटी जो है, वो पूरी तरह से वहां पे वो खुद को झोंक देता है, पूरी तरह से वहां पे उनको सौंप देता है। फिर वहां पे तो उसका इंथुजियाज्म उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की कार्य रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मतलब जो नारद भक्ति सूत्र में और उन्हें बताया है कि उन्होंने याद दिला दिया है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मामुपेत्यम पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो महान आत्माएं जो मेरी भक्ति सेवा में संलग्न होती है वो मुझे सर्वोच्च प्रभु को प्राप्त करती है और इस दुखी भौतिक जीवन में वापिस नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता सुख जो है उन्होंने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे वो प्रभुपाद जी मतलब वापिस हम लोग को याद दिलाते हैं कि जो आत्मा, जो भगवान, जो जो ये डिवोटी रहते हैं, ये इस भौतिक को याद रखते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है, तो वो इस भौतिक सुख के पीछे नहीं लगते हैं जो बाकी के लोग करते रहते हैं। उन लोग को लगते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत बार अभी हम लोग देखते हैं कि लिव लाइफ सीकिंग साइज, या फिर बोलते हैं बहुत आनंद, ये जो जीवन है उस आनंद लेने के लिए है, ये जो दुनिया है ये सुख भोगने के लिए है। तो अच्छी तरह से जियो, लोगों को खुश करो, खुद सुखी रहो, तो अपना जीवन सुखी रहता है। ये सब जो है बकवास है, क्योंकि ये दुख जैसे भगवान ने बताया है, तो हम लोग कौन है उसको, मतलब भगवान ने जब इसको दुखालय में बोला है तो हम कौन बोलते हैं कि ये सुखालय, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ये सुखालय है नहीं, हम लोग के इल्यूजन है, सुख में जीते हैं, खाना खा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वही खाना मतलब जैसे वो इकोनॉमिक्स के हम लोग वांट्स बोलते हैं कि बहुत भूख लगेगी तो पहला एप्पल अच्छा रहता है, लेकिन भूख जब पूरी भर जाती है तो तीसरा चौथा एप्पल हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। फिर अगर हम लोग कोई मतलब पांचवा छठवा एप्पल देंगे तो जो देने वाले को हम लोग मारने के पीछे दौड़ेंगे, अरे क्या कर रहे, मारोगे क्या खिला खिला के। लेकिन जब वो बंदे ने जब हम लोग को पहला एप्पल दिया था, बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग उसको बहुत सारे हम लोग आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये चीज हम लोग के यहाँ पे कि हम लोग को ये जो सुख है ये क्षणिक है, ये एक सुख का एंड है। जो भी हम लोग कार्य करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग सोचते हैं कि ये सुख है, उसका एंड है। तो जो एंडिंग पोजीशन में जब जाता है तो हम लोग को जो जो सुख का जो शुरुआती का पोजीशन है वो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को फिर उसको याद नहीं आता है, क्योंकि वो
वही है जिस तरीके से यहाँ पे भगवान ने ये जो सृष्टि की क्रिएशन जो किया है वो इसी तरह से किया है कि भगवान हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग माया में कितने प्रभावित हो सकते हैं, माया से कितने इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हम लोग सच्ची में भगवान के प्रति पास जाने की हम लोग में उत्कंठा है कि नहीं, या हम लोग सिर्फ यहाँ पे रह के ये जो माया का जो आकर्षण करने वाला जो रूप है उसके पीछे हम लोग लग जाएंगे, उसके पीछे हम लोग आसक्त हो जाएंगे, और हम लोग जो रियलिटी हम लोग जो है, जो गोलोक वृंदावन जहाँ पे भगवान अपने असीम लीला और असीम कृपा करते हैं, जो एक्चुअली जो जहाँ पे हम लोग का होना चाहिए वो हम लोग पूरी तरह से भूल के इसी भौतिक जग में हम लोग खुद को कितना ज्यादा एंजॉय करने के पीछे लगेंगे। ये भगवान टेस्ट करने के लिए माया को जो बहिरंगा शक्ति है उनको उन्होंने क्रिएट किया है। तो बोलते जब तक एक भक्त अपने भौतिक शरीर में है तब तक भक्ति सेवा ही उसकी गतिविधियां उसे प्रभु के सर्वोच्च निवास पे स्थानांतरित होने के लिए तैयार करती है। जो 100% भक्ति सेवा में लगे हैं वो ही इस पूर्णता का प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मतलब बीच में लाल गोविंद प्रभु जी का एक मैंने लेक्चर सुना था, तो लाल गोविंद जी प्रभु बोलते हैं कि भगवान इतने प्यार करते हैं हम लोग से कि हम लोग अगर छोटी सी भी भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान रेडी रहते हैं हम लोग के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए। तो हम लोग अगर बोलेंगे भगवान मुझे बंगला दो, भगवान तो इमीडिएटली हाँ तुमने इतनी भक्ति की ले लो बंगला ले लो, तुमने इतना, तुम भगवान उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तुम लोग ने मांगा मैंने दे दिया, अभी बात खत्म हो गई। तो ये लाल गोविंद प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि इसके लिए हम लोग को भगवान को बांध के रखना चाहिए अपने प्यार से, कि भगवान हम लोग को कभी, जैसे भगवान बोलते हैं गोकुलवासी आई एम इंडेप्टेड, तो वो इंडेप्ट भले हम लोग इतना भगवान से प्यार नहीं करते लेकिन भगवान को हम लोग ने अपने प्यार से बांध तो सकते हैं। भगवान से हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान सिर्फ इतना मांगेंगे कि मुझे जो भी है आपका एक विशुद्ध भक्त बना दो, विशुद्ध प्रेममय भक्त बना दो। हम लोग जो भी कार्य करेंगे वो सिर्फ आपके लिए होने चाहिए, ये हम लोग मान सकते हैं। अभी हम लोग एक जयदेव गोस्वामी जो जिनका एग्जाम्पल हम लोग बार बार सुनते हैं कि उनको हुआ था ऐसा कि उनको चोरों ने उनके हाथ काट दिए थे और उनको एक कुएं में फेंक दिया था। और फिर जब राजा के सेवक जब आते हैं उनको चैंटिंग का नाम सुनाई देता है तो उन लोग को पता चल देखते तो वो जयदेव गोस्वामी रहते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो राजा उनको है वो महाराज राजा उनको कहते हैं कि आप तो जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त हो तो आप जगन्नाथ से मांग सकते हो ना हाथ, तो जगन्नाथ जी तो आपको तुरंत हाथ दे देंगे। तो बोलते हैं मुझे हाथ की क्या जरूरत है, मैं तो चैंटिंग मुंह से करता हूँ, मुझे मुंह की जरूरत है, मुझे हाथ की कुछ जरूरत नहीं है। और वो इस तरह से हाथ लेने से इनकार करते हैं भगवान से। वो मतलब उतने हाथ कटने के बाद मतलब वो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज हमारी उंगली को हल्का सा खरोच भी आ गया तो हम लोग उसके डॉक्टर के पीछे दौड़ना चालू करते हैं और क्या क्या दवाई नहीं लगाते, क्या क्या पेन किलर नहीं खाते। यहाँ पे उनके तो 2 हाथ कटे थे और वो इतने बड़े भक्त थे कि वो भगवान से मांगेंगे तो भगवान तो कुछ भी करके देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मांगते नहीं है। तो निताई सेविनी माता जी ने बीच में जो उनका एक सुना था तभी उन्होंने बताया था कि ऐसा होता है कि जो रानी जो रहती है, वो राजा की जो महारानी जो रहती है वो उनको मतलब जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी पे उनको थोड़ा सा विश्वास नहीं रहता कि इतना कोई अपने पति से कैसे प्यार कर सकते हैं। तो वो एक बार झूठी अफवाह फैला देती है कि जयदेव गोस्वामी मारे गए। तो ये जब सुनती है तो माता जी है वो जैसे ये सुनती है तो वो अपना प्राण त्याग कर देते हैं। तो ये जब जयदेव गोस्वामी आके देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा बोलता है कि तुम एक बड़े भक्त का, इतना जो अति शुद्ध भक्त है, ऐसे भक्त की तुम परीक्षा कैसे ले सकते हो। तो गुस्से में वो तलवार निकालते हैं और वो रानी को मारने दौड़ते हैं। तब जयदेव गोस्वामी अपने मतलब जो कटे हुए हाथ है वो बढ़ाने का ट्राई करते हैं राजा को रोकने के लिए। तो अभी हाथ तो कटे हैं तो कैसे रोक सकते हैं, लेकिन तभी इमीडिएटली जगन्नाथ स्वामी जो है उनके जो हाथ है उनको प्रदान करते हैं और वो बढ़े हुए हाथ अपने जो जो हाथ आगे करने का सोच रहे थे तो हाथ आने की वजह से वो महाराज को रोकते हैं। और फिर रोकते मतलब यहाँ पे दिखाया दिया कि मतलब जो जयदेव गोस्वामी ने मांगा तो भगवान से कुछ नहीं था, लेकिन
उनका सिर्फ प्रयत्न था कुछ गलत होने से रोकने के लिए, कुछ तो वहां पे ये जो जगन्नाथ स्वामी ने उनको मदद करके उनके हाथ उनको दे दिए थे। तो हम लोग देखते हैं मतलब कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग को मटेरियल बेनिफिट के लिए भगवान से कोई भी भक्ति नहीं कर रही है, मटेरियल बेनिफिट के लिए हम लोग को भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो यहाँ पे इतने बहुत बड़े उदाहरण है अपने साथ, और ये तो कोई सत्ययुग वगैरह के नहीं, तो कलयुग के उदाहरण है जयदेव गोस्वामी। तो हम लोग देखते हैं कि ये कलयुग में भी जो ये युग है, कलह का जो युग है, यहाँ पे हर आदमी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट के लिए किसी से भी प्यार करता है, किसी से भी दोस्ती करता है, किसी से भी हमदर्दी दिखता है, उसका हर बार कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है। वहीं पे हम लोग को ये जो शुद्ध भक्त है उनसे हम लोग को सीखना चाहिए कि लेकिन भगवान से हम लोग जो कोई भी प्यार करते हैं, भगवान से हम लोग जो भक्ति करते हैं, भगवान पे हम लोग जो श्रद्धा रखते हैं, तो उसके पीछे हम लोग का कुछ भी हेतु नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली जीरो हेतु। और वो सिर्फ हम लोग प्यार करते हैं भगवान को अपने अपने से बांध के रखने के लिए। तो मतलब प्रभुपाद जी ने फिर यही बताया कि महात्मा विदुरा जो थे वो ऐसे एक बड़े भक्त थे जो जिसका जो चरण कमलों के जो उन्होंने जो जो फुटस्टेप्स लिए हैं, उन्होंने जो पद लिए हैं, हम लोग को उनका फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैं अभी अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आज ये जो श्लोक था इसका ये तात्पर्य मैं अपने हिसाब से जो समझ पाया हूँ। अगर मेरे से कुछ प्रभु जी, अगर माता जी, अगर मेरे से कुछ रह गया है तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। कुछ भूल हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ माता जी, आ रही है। हाँ माता जी। प्रभु जी, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। जैसे आपने बोला भक्ति के बारे में, भगवान से हमें कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ विशुद्ध भक्ति मांगनी है। वो सब अच्छा लगा। हर एक पॉइंट जो थे वो पूर्ण भक्ति में आपके भावपूर्ण जो लेक्चर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद इसके लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। और जैसे आपने बताया कि हमको हमेशा भगवान के अर्च विग्रह के सामने जाके दर्शन लेने हैं। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जगन्नाथ जी के बारे में। तो मतलब रथ यात्रा जब होती है तो बहुत लोग आते हैं। तो ऐसा कहा गया कि इवन जिनके पास आंखें नहीं है वो भी आते हैं। तो एक बार किसी ने पूछा एक अंधे से, क्या रे आपके पास आंखें नहीं और आप यहाँ पे क्या क्या करने आए हो? तो उन्होंने बताया, मैं तो नहीं देख सकता भगवान को, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं। तो प्रभु जी वही बता रहे थे कि हमें हमारा ये है, ऐसा होना चाहिए भाव कि भगवान हमारा दर्शन ले। दैट इज परफेक्शन। हम मतलब भगवान का दर्शन तो हमको लेना ही है, लेकिन रियल ऐसा होना चाहिए हमारे भक्ति की भगवान हमको देखे। जब भगवान हमको देखेंगे और अपनी करुणा देंगे, दैट इज आवर परफेक्शन। तो एक पॉइंट ऐड करना था प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया आपने पॉइंट दिखाया। मतलब ये हर बार याद रखना चाहिए कि भगवान खुद हमें हमारा मतलब हमें भगवान खुद हमें देखे, हम भगवान को ना भी देखे तो। हरे कृष्णा।